Hello, students. My name is Gaurav. I welcome you all to this wonderful session of Ved Science. So, now you can subscribe to our channel, that is Ved Science, and also you can hit the bell icon for the regular updates. So, yes, I hope you all must be having a great time and you all must be safe at your places. And yesterday we have completed the second chapter with respect to NTC special series, and this is our third chapter, uh, and the name of the chapter is development. So economic development, part 1, or sorry, part 2. So this is the class 10th NCRT book, and we shall be dealing with this chapter in detail, because every year, I mean, you may have at least one question from this chapter, at least one question in NTSC, in paper 1 as well as in paper 2. So you need to understand what actually constitutes the development and what are the different notions of development. So let's begin with this beautiful chapter in the name of development, NTSC special series, and this is economics. Okay, so let's get started. And as I have told you before, that you can also use this series for your CBSE class as well, because it would help you in providing the content while you write the answer in your board examination. But nonetheless, I mean, it hardly matters. There is no harm if you view this video from the CBSE point of view. So let's get started. All right, development. Now, so first thing that strikes to our mind, what is development? See, development actually does not have a single definition. All right, there is no perceived definition for development, and there is no acceptable definition for the word development. In a very simple terms, if I state, then development means to make something better, किसी चीज को बेहतर बनाना. और हिंदी में डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास. आप किसी चीज को बेहतर कैसे बना सकते हैं, सो दैट इज डेवलपमेंट. ऑलराइट, एंड दिस डेवलपमेंट, द actually the concept of development is holistic. Now how it is holistic? Because everyone wants it, many chase it, and few get it. This is the foremost important thing that one should remember, and this is not written in the NCRT. एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट, सबको डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, मगर उन सब में से काफी लोग डेवलपमेंट के पीछे भागते हैं. सो मैनी चेज इट. एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट, सबको चाहिए, बट उन सब में से बहुत लोग उसके पीछे भागते हैं, एंड फ्यू गेट इट. और उन सब में से, उन एक्चुअली जितने भी लोग उसके पीछे भागते हैं, उनमें से किसी को, किसी मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में वो चीज हासिल होती है, ठीक है. बहुत ही कम लोगों को डेवलपमेंट की प्राप्ति होती है. तो दिस इज हाउ you can understand by this statement, development is holistic, which means everyone wants it, many chase it, and few get it. All right, so this is what. अब इस पे आ जाते हैं. what ये है हमारे एनसीईआरटी का पहला टॉपिक. what development promises different people different goals. now what does it mean? इसका मतलब ये है, डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट लोगों के लिए अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट नोशंस हैं. डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो अलग है. कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट एक अच्छी एजुकेशन होती है, एंड सो ऑन. तो देर आर डिफरेंट पीपल एंड दे हैव डिफरेंट गोल्स एंड दे हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट. तो सबसे पहला जो सवाल एनसीईआरटी में ये है, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन? नाउ व्हाट एक्चुअली इट इज टॉकिंग अबाउट? सी, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस टेबल. It is talking about this table. Now, please listen to this very carefully. So, there are category of person
And on the other hand, you can see developmental goals and aspirations. What is aspiration? Aspiration means the person who aspires to achieve something. He has an aspiration. उसके पास महत्वाकांक्षा है, उसके पास काम करने की एक इच्छा है, उसके पास एक अंदर भावना है, उसको पाने की इच्छा है, एक महत्वाकांक्षा है. ठीक है, तो दैट इज एस्पिरेशन. एंड एस्पिरेशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम डिजायरेबिलिटी. ठीक है, एक तो होता है डिजायरेबल और एक होता है एस्पायरिंग. ठीक है, डिजायरेबल क्या होता है कि वो उसके लायक है, बट एस्पिरेशन आप किसी चीज के लिए क्यों रखते हो? क्योंकि आपको वो पाने की इच्छा होती है. सॉरी, इट इज नॉट डिजायरेबल, इट इज डिजर्विंग. सॉरी. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्पिरेशन एंड डिजर्विंग. ऑलराइट, actually I mismatched the word, I'm really sorry for that, but there is a difference between aspiring and deserving. aspiring होता है कि जो किसी चीज को हासिल करने की इच्छा रखता है, महत्वाकांक्षी. ठीक है, वो महत्वाकांक्षी है. और डिजर्विंग कौन होता है? जो उसके काबिल होता है, जो किसी चीज के काबिल होता है, उसको बोलते हैं डिजर्विंग. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एस्पिरेशन एंड द deserving. All right, now so you can see this table and it has also been given in your NCERT. So landless rural laborers, landless rural laborers, उसका जो एस्पिरेशन होगा, उसका जो डेवलपमेंटल गोल होगा, वो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति जिसके पास कोई जमीन नहीं है, ही इज लैंडलेस रूरल लेबरर्स. लैंडलेस, ठीक है, जिसके पास जमीन नहीं है, अपनी खुद की रहने के लिए जगह नहीं है, वो चाहेगा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा दिन मुझे काम मिले और मुझे उस काम के लिए अच्छी तनख्वाह मिले, बेटर वेजेस मिले. एंड इट कुड बी डेली वेजेस, ऑफ कोर्स इट इज डेली वेजेस ओनली. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी कि जहां पर वो रहता है उसी एरिया में एक स्कूल हो और वो स्कूल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके उसके बच्चों को, और वहां पर उसके साथ कुछ भी भेदभाव ना हो, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो. और एक दिन वो भी चाहेगा कि मैं गांव में लीडर के रूप में काम करूं, मुझे लीडर समझा जाए. ठीक है, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी एस्पिरेशन है. नाउ प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब क्या चाहेगा? वो चाहेगा assured a high family income through higher support prices for their crops and through hardworking and cheap laborers. They should be able to settle their children abroad. तो prosperous farmers of पंजाब की जो डेवलपमेंटल गोल है और जो उसका एस्पिरेशन है, वो क्या रहेगा कि उसकी फैमिली इनकम में एक अश्योरेंस आए, रेगुलर इनकम हो उसकी. ठीक है, जो भी वो क्रॉप्स उगा रहा है उसके लिए उसको अच्छे प्राइस मिले. ठीक है, और उसको चीप लेबर्स मिले, ताकि जितना भी उसका काम हो वो सस्ते में हो जाए और प्रॉफिट उसको ज्यादा मिले. और उसके बाद उसका एक जो एस्पिरेशन है वो ये भी है कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल कर सके. सो दिस इज द एस्पिरेशन. नाउ फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अब इसमें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट या डेवलपमेंटल गोल या एस्पिरेशन क्या होगा? देखिए उसका एस्पिरेशन क्या होगा. ही वुड एक्चुअली एस्पायर फॉर मोर रेनफॉल, कि भाई अच्छी बारिश हो, और अच्छी बारिश मतलब कि फसल जो है वो ज्यादा उगेगी. देयर वुड बी हायर यील्ड्स. ठीक है, बेटर प्रोडक्टिविटी, एंड दे वुड आल्सो वांट बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज. ठीक है, अपने एरिया में बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज भी हो, ताकि ठीक है, सो दैट इवन इफ दे डोंट गेट गुड रेनफॉल इन अ ईयर, देयर क्रॉप्स वुड नॉट फेल. अगर बेहतर इरिगेशन फैसिलिटी उसके एरिया में उसको मिल गई, ठीक है, तो उसको बारिश की चिंता नहीं होगी, और बारिश की चिंता ना होने के कारण उसको एक्चुअली उसके क्रॉप्स को नुकसान नहीं होगा. तो ये
उसकी डेवलपमेंटल नीड या गोल या एस्पिरेशन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस कैटेगरी पे, अ रूरल फ्रॉम अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। अब उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? तो यहां पर आप ध्यान से सुनिए, ये एनटीएससी में आता है, ये डायरेक्टली एनटीएससी में टेबल से आपको पूछा जा सकता है और आपको आंसर करना पड़ता है। तो अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक है, वो क्या चाहेगी? वो ये चाहेगी कि एक तो हाई यील्ड हो, हाई प्रोडक्टिविटी हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हो। ठीक है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी हो उसके बच्चों के लिए, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हो उसी के एरिया में, एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन फैमिली डिसीजन मेकिंग। अपनी फैमिली में, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसकी बात ज्यादा से ज्यादा सुनी जाए। ठीक है, तो ये उसका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा, ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट, आई मीन द नोशंस ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी मच डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हमारी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। तो दिस इज व्हाट नाउ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के मन में क्या आएगा? सबसे पहले उसके मन में यह आएगा कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मेरा बना रहे। ऑलराइट, देन दे आल्सो वांट टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, ताकि इनकम आती रहे, अपनी फैमिली का ख्याल हम रखते रहे। ठीक है, एंड गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड द सोसाइटी। अब फैमिली, जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं, अच्छे से उनको अच्छे से रख सकते हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। दे वुड एबल टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, चाहे वो बेसिक नीड हो, चाहे वो कोई भी नीड हो, और उसको मद्देनजर रखते हुए फिर उनको रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, उनके पेरेंट्स भी उनको रिस्पेक्ट करेंगे। तो एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की ये डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, ये उसकी एस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, नाउ यू वुड सी अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो हो गया। ठीक है, नाउ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अब एक लड़की जो कि एक रिच अर्बन फैमिली में रहती है, उसका डेवलपमेंटल गोल और उसकी एस्पिरेशन क्या होगी? उसकी एस्पिरेशन या डेवलपमेंटल गोल यही होगा, शी गेट्स एज मच, हो सकता है, इट कुड बी, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। तो यानी कि यहां पर कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि जेंडर इक्वालिटी। यहां पर फोकस किया गया है जेंडर इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, उसको उतनी ही फ्रीडम मिले जितने उसके भाई को मिलती है, और उसको अपने डिसीजन लेने की आजादी दी जाए कि उसको लाइफ में क्या करना है, ताकि वो अपने हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा सके। ये उसका डेवलपमेंटल गोल या एस्पिरेशन हो सकता है। नाउ एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ओके, नर्मदा as you know where it is situated, and please you can just comment in the comment section. I would really appreciate this कि नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और नर्मदा वैली कहाँ सिचुएटेड है, और इसके ऊपर एक बहुत फेमस चीज़ है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिक 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपसे पूछा है, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस। सो एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली के ऊपर आपको 3 चीज़ें बतानी है। उसका ओरिजिन है, ठीक है, और बेसिकली उसके ऊपर एक्चुअली क्या है। ठीक है, और जो नर्मदा, और मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करके बता देता हूँ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक तरह का मूवमेंट है। ओके, सो इनकी जो लीडर है वो मेधा पाटकर जी है, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। और आपको ये भी बताना है कि नर्मदा को किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो पूरा अगर आप डिस्क्रिप्शन देंगे नर्मदा वैली के ऊपर, आई वुड रियली like it, so you can also comment in the YouTube section. Now an Adivasi from Narmada Valley own a piece of land and find a source of income. ये उसके लिए 2 चीजें मैटर कर सकती हैं। ठीक है,
एन आदिवासी फ्रॉम अ नर्मदा वैली, उसके लिए क्या मैटर करेगा कि उसके पास एक छोटी सी जमीन हो और उस जमीन पर वो कुछ ऐसे मतलब सोर्स ऑफ इनकम का इस्तेमाल करे ताकि ताकि उसको कभी भी परेशानी ना आए फ्यूचर में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट। तो इस टेबल के माध्यम से आपको समझ में आ चुका होगा कि लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये टेबल पे मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में पूछा जाता है डायरेक्टली यहां से। नाउ ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। हाउ हाउ अब देखिए, they seek things that are most important for them, that is that which can fulfill their aspirations or desires। यानी कि इंसान जो है उन्हीं चीजों को महत्व देता है, उन्हीं चीजों को इंपॉर्टेंस देता है जिसको पाने के लिए वो बहुत इच्छुक रहता है, जिसको एक्चुअली पाने के बाद उसको एक खुशी मिलेगी, जिसके लिए वो एक प्रायोरिटी बन जाएगी। सो दिस इज व्हाट। In fact, at times, two persons or groups of persons may seek things which are conflicting। भाई जो मुझे अच्छा लगता है जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा लगे, और जो आपको अच्छा लगे जरूरी नहीं है कि वो मुझे अच्छा लगे। So there are two conflicting ideas। There could be two conflicting ideas। Alright? तो जैसे मैंने आपको बताया different notions of development। So there are different notions of development because people have different एस्पिरेशंस, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, जो अभी हमने एक टेबल के द्वारा पढ़ा, एक टेबल के माध्यम से पढ़ा। देन अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। यानी कि अब यहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ गई। ब्रदर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बहन उसकी बराबरी करे या उसको उतनी फ्रीडम या अपॉर्चुनिटी मिले जितनी उसको मिल रही है, उसके भाई को मिल रही है। ठीक है, वो ये चाहेगा कि बहन जो है, जो लड़की है, वो हाउस होल्ड में अपना हाथ बटाए, घर के कामों में हाथ बटाए। बट ऐसा क्यों? ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इक्वालिटी कहां गई? ठीक है, तो उसका भाई इन चीजों के खिलाफ हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज हो गई। Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disturb the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate the land. अब इंडस्ट्रियलिस्ट अपने फायदे के लिए और किसी के फायदे के लिए भी, they would construct the dam to get more electricity. All right. But at the same time, I mean, you can just see the contrast. At the same time, it would harm the society. It would harm the people who are residing just, at the side of the river. It would harm the society. All right, because they have to leave the land. They have to displace. They are displaced actually, because the land would get submerged. The land would get submerged for the developmental activity. So for them it is not a developmental activity. For the people who are residing near the dam constructing area, it would not actually, for them it is not a developmental activity. Okay, so they might resent this। उनको ये पसंद नहीं आएगा और वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे और वो बताएंगे कि इससे अच्छा आप छोटा एक डैम बना दो या टैंक बना दो ताकि उनका लैंड इरिगेट हो सके, बट डैम यहां पर ना बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि वैसे ही वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब आप उनकी जमीन ही उनसे छीन लोगे तो वो कहां जाएंगे? सो दिस इज व्हाट। सो देयर यू कैन सी द कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। ऑलराइट, देन सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर इन दिस। तो दो चीजें क्लियर है, ठीक है, काफी हद तक क्लियर है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ऑफ कोर्स मेरा डेवलपमेंटल गोल आपके डेवलपमेंटल गोल से काफी अलग हो सकता है। मेरे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए
लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मेरे लिए, मेरे को पसंद है कि मैं पूरी जिंदगी ट्रैवल करता रहूं, बट आपको पसंद है कि आप पूरी जिंदगी घर पे रहना चाहते हैं और घर से ही काम करना चाहते हैं। तो ये आपका नोशन है डेवलपमेंटल का, ठीक है। सो योर नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम माय नोशन ऑफ डेवलपमेंट। जो आप चाहते हैं, क्या पता उसमें मुझे खुशी ना मिले, मगर आपको खुशी मिल सकती है। मगर जो मैं चाहता हूं, क्या पता आपके लिए वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, बट उसमें मुझे खुशी मिल सकती है। सो दैट इज वाइस वर्सा। ऑलराइट, नाउ व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अभी हमने डैम वाला केस देखा, भाई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ताकि उनको सरकार पैसा दे या कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो अपना फायदा तो उसमें देख रहे हैं। एक तरह से मान लो कि सोसाइटी का फायदा चलो हो रहा है, एट लार्ज सोसाइटी का फायदा हो रहा है, बट दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफी लोगों की जमीन छिन जा रही है, ठीक है। यानी कि दैट डेवलपमेंटल गोल इज कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर देम, इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर देम, इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द ट्राइबल पीपल, बिकॉज नाउ दे हैव टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट एरिया। उनको अपनी जगह से हटना पड़ेगा, तो वो डेवलपमेंटल गोल जो है वो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव बन गया। ओके, सो दीज आर some of the different notions of development. Now, income and other goals. Income and other goals. Now it is very much important. देखिए, for development people look at mix of goals. People look at a mix of goals. कहने का मतलब ये है, लोगों के मतलब कई लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। कुछ लोगों को ऐसी चीजें पसंद आती है जो कि पैसा हो गया और लग्जरी लाइफस्टाइल हो गई उनके लिए, ठीक है, और एकदम आराम भरी जिंदगी हो गई। और कुछ लोगों के लिए पैसों से बढ़कर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और उन फैक्टर्स में से आता है आपका यू एक्चुअली यू टेंड टू वैल्यू द रिलेशनशिप, देन ऑल्सो यू नीड कि आपको कोई समझे, आपकी फीलिंग्स को कोई समझे, आपके इमोशंस को कोई समझे। सो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इनकम एंड अदर गोल्स, एक तरफ इनकम रखो और एक तरफ अदर गोल्स रखो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अब देखिए, अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। नाउ सो पीपल आर डेमोन्स्ट्रेटिंग कि भैया डैम की हाइट बढ़ाने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हमारी जगह एक्चुअली छीनी जा सकती है, ठीक है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक एक्चुअली पिक्चर है, ऑलराइट। सो अ डेमोन्स्ट्रेशन इज टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। अब डैम की हाइट बढ़ाने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। अब देखिए, यहां देखिए, besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. जी हाँ, देखिए, इनकम तो एक तरफ आप रख दो, इनकम के अलावा लोगों को और क्या चाहिए कि उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, उनको फ्रीडम मिले, उनको लिबर्टी मिले, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, और उनको दूसरे लोगों से इज्जत मिले। तो रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स या फिर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सो देयर इजंट डिस्क्रिमिनेशन। अगर उनके साथ कुछ भी भेदभाव होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो मैंने आपको क्या अभी समझाया कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, जिनको सिर्फ चकाचौंध के बारे में समझ है, ठीक है। दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल और दे आर नॉट एट ऑल बॉदर, दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड कि भाई इमोशंस नाम की भी कुछ चीज होती है, अफेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड, ऑलराइट। तो इसमें वही बात लिखी हुई है।
So these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. सिर्फ मटेरियल गुड से ही आपकी लाइफ नहीं चलेगी. अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एक अच्छी हेल्थ नहीं है, ठीक है, उस मटेरियल गुड का क्या फायदा, उस पैसों का क्या फायदा? यूजलेस. सो मनी और लाइफ, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स. ये सिर्फ एक फैक्टर है, ये एक पहलू है. पैसा और मटेरियल थिंग्स, ठीक है, जो कि आप पाने की इच्छा रखते हैं, ये एक फैक्टर है. ठीक है, आपकी लाइफ इस एक फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है, मगर जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स पे भी डिपेंड करेगी. द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे मैंने अभी आपको हेल्थ का एग्जांपल दिया, ठीक है. एंड इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ. यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप. अकेले रहना असंभव है, बहुत मुश्किल है. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. फॉर मी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आई कांट. I need love, I need affection from my friends, from my family, and it is very much important in everyone's life. सबकी लाइफ में ये बहुत pivotal रोल प्ले करता है. आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस, या एक आपका अच्छा पीयर ग्रुप होता है, तो एक्चुअली वहां से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है. And it is very much important. And similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives, and these are often ignored. तो यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम आसानी से इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, मगर बाद में हमें रियलाइज होता है, बाद में हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, और बहुत देर हो चुकी होती है. तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है, फिर हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता. ठीक है. What I mean to say is, material factors, money factor, okay, it is important for everyone. ठीक है, it is very much important. It plays an essential role in your life. But other than this, non-material aspects, non-material things, for example, you must have good friends and good peer group. You must have, good family relations and all. तो वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं. So this is what, and one should not ignore this. Then example, अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है. Now supposedly if you get a job in a far off place, and before accepting it you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere or opportunity to learn. Now at present जहां आप रह रहे हैं वहां पर आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एंड ऑल्सो यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी टू लर्न. योर चिल्ड्रन वुड बी हैविंग बेटर अपॉर्चुनिटी टू लर्न. बट एट द सेम टाइम you have been offered a very good high pay scale job, but you have to sacrifice these non-material aspect. You have to sacrifice your family, the working atmosphere, and so on. You have to sacrifice just because of income. ठीक है. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Fine, आपके पास जॉब है, तनख्वाह कम है, इनकम कम है, पे कम है, सैलरी कम है, ओके, बट यू हैव अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रेगुलर यू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि इतना तो मुझे मिलेगा जरूर, ये तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरे हक का कोई नहीं छीन सकता. This is what you aspire for, and that is what you deserve. And another job, however, may offer high pay but no job security, and also leave no time for your family. So this will reduce your sense of security and freedom. तो यानी कि आप इतना परेशान हो जाएंगे, इतनी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है
कि आपको फिर बाद में रियलाइज होगा कि बेहतर था कि मैं उसी जॉब में रहता। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, सो पीपल हैव मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए फैमिली रिलेशंस, लव, अफेक्शन, ये सब मैटर करता है। सो एक्चुअली इट all depends upon people to people. And it is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. Of course. See, people who are parochial, people who actually have a parochial mindset, a parochialistic society, would never understand the importance of women. जो narrow mindedness होते हैं ना, जो नैरो माइंडेडनेस होते हैं, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि वुमेन का क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। ऑलराइट, ओनली द एजुकेटेड पर्सन, द एजुकेटेड फैमिली वुड अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। बट हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। भाई, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि वुमेन को बाहर जाकर के काम करना चाहिए, बट दूसरी तरफ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वुमेन को एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है वो मेन स्ट्रीम में आए, वो जॉब्स लें, एंटरप्रेन्योर्स बने, बिजनेस चलाएं। एक उनको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट की जरूरत है। So this is what the society accepts, and it is very much true. बहुत सच्चाई है इस बात पे। ठीक है, hence the developmental goals that people have are not only about the better income but also about other important things in life. तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं, मगर उसके अलावा कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें जो लाइफ में होनी चाहिए इंसान की, वो मैटर जरूर करता है। ठीक है, इनकम तो एक मतलब एक लाइफ का एक पहलू हो गया, ठीक है, उसको वो तो चाहिए इंसान को, पर उसके अलावा उसको बेहतर बनाने के लिए, लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जहां पर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक अच्छा बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, नॉन मटीरियल थिंग्स। ऑलराइट, देन नेशनल डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा शब्द है ये, नेशनल डेवलपमेंट। ऑलराइट, राष्ट्र विकास, हम राष्ट्र के विकास के बारे में बात करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. मेरे लिए कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है कि 2030 या जब मर्जी मेरी कंट्री एक ऐसे दौर पे पहुंच जाए जहां पर सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। आपके लिए डेवलपमेंट का नोशन हो सकता है कि आपकी कंट्री में जितनी भी सिटीज है उनको स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो एजुकेशन मेरे लिए एक डेवलपमेंटल गोल बन गया, एक नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बन गया मेरे लिए एजुकेशन। आपके लिए बन गया स्मार्ट सिटीज होनी चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए। दैट इज द नेशनल डेवलपमेंट फॉर यू। ओके, इट कुड बी, ठीक है, ये हो सकता है। मगर देखिए, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। इन सवालों को पहले आप ध्यान से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। हाउएवर, कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वल इंपॉर्टेंट? मेरे मन में आइडिया जनरेट होता है, आपके मन में आइडिया जनरेट होता है, सभी के मन में आइडिया जनरेट होता है। क्या सभी की सभी आइडियाज जो है इक्वल इंपॉर्टेंट है? इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड? अगर कॉन्फ्लिक्ट है हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? तो ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए सभी लोगों को एक फेयर पाथ मिले, एक जस्ट पाथ मिला कि हाँ यही सबके लिए सही है? ऐसा क्या हो सकता है? वी ऑल्सो हैव टू थिंक, ठीक है, तो ऐसा क्या चीज होगी? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो जिसके जरिए हम अपने काम को या अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है,
ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन सा बेटर वे है जिसके जरिए हम अपना काम कर सकते हैं। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली स्मॉल ग्रुप? तो क्या जो हम सोचते हैं, क्या वो एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बेहतर होगा या सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बेहतर होगा? तो ये सारी चीजें जब आपके माइंड में आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि नेशनल डेवलपमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब देखिए, ये एनसीईआरटी में पिक्चर दे रखी है, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के पास में एक रूरल एरिया है, ठीक है, इट्स अ झुग्गी झोपड़ी जे कॉलोनी, और काफी मेस्डअप आप देख सकते हैं, ठीक है। और तो ये समुंदर के पास में है। Now, who are the people who benefited and who did not? What should be the developmental goal for this country? ये सवाल पढ़ेंगे बाद में, पहले ये एक कंटेंट पढ़ लेते हैं, ये एक आइडिया पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली बोल क्या है। A vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding area. तो एक वेसल है, शिप का एक वेसल है, उसमें 500 टन का लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल था जिसने सिटी के सराउंडिंग एरिया में उसको गिर दिया। और ये चीज एक्चुअली हुई एक कंट्री है अफ्रीका में, ठीक है, अब्जान इन आइवरी कोस्ट, ठीक है। एंड द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज्ड नोजिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया एटसेट्रा। तो इस कंट्री में जो कि आइवरी कोस्ट के पास में है, उसके अंदर है एक ये जो सिटी है, ऑलराइट, सिटी अब्जान इन आइवरी कोस्ट, कंट्री इन अफ्रीका। तो वहां पर लोगों को प्रॉब्लम हुई, ये सारी जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है वो सब। आफ्टर अ मंथ 7 लोगों की मृत्यु हो गई, 20 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए थे और 26,000 लोग को सिम्टम्स हुए। दे वर एक्चुअली ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। एंड अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम, तो एक एमएनसी जो कि पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो डील करती है एंड मेटल्स, ऑलराइट, दे हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। यानी कि जो शिप यानी कि जो वेसल है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया आइवरी कोस्ट में ही एक लोकल डीलर या एक लोकल कंपनी को कि जितना भी उनके पास डंप मटेरियल है वो आप हमसे ले लीजिए और फेंक दीजिए जहां आपका मन करे, ठीक है। अब देखिए, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। नाउ हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड? एक तो जो वेसल था उसको फायदा मिला, और किसको फायदा मिला? जो लोकल कंपनी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, उसको फायदा, जो एक्चुअली जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको फायदा था, एक लोकल कंपनी को, क्योंकि उसको पैसे मिले, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री? अब देखिए, इसका दूसरा पार्ट हम एक बार पढ़ लेते हैं। हु डिड नॉट, अब इससे किसको बेनिफिट नहीं मिला? ऑफकोर्स जो लोग वहां पर रह रहे हैं, ऑफकोर्स जो लोग सराउंडिंग एरियाज में वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए तो काफी नुकसान है। उनकी तो जान के साथ इन लोगों ने खेला और काफी लोगों की जान भी गई, ठीक है, काफी लोगों की जान भी गई। सो व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री? इस कंट्री का डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए? एक ऐसा डंपिंग एरिया बनाया जाए जहां पर लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो, ठीक है, जहां पर लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो। यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए, वेस्ट मटेरियल के ऊपर, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए ताकि ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। सो ये हो सकता है उस कंट्री के लिए उसका डेवलपमेंटल गोल, ठीक है। So I hope you all must have understood the chapter very much clearly. I mean, this was the half a part of the chapter, and surely we would be dealing with this chapter in detail as well. I mean, the next part of the chapter tomorrow for sure. So till then, stay home, stay safe, and if you have any query, you can just comment in the comment section of this YouTube channel, and also you can
press the bell icon for the regular updates, and please do subscribe to our channel, that is Ved Science, and it is very much important for from NTC point of view. And as I've told you before, that it would also play a greater role in providing the best content, the better content, you would say, in CBSE examination. Alright, so according to me, it is the best explanation. So I hope you all must have understood. Alright, so please do subscribe. So till then, stay home, stay safe,